चलिए, so actually we will be starting with respiration in kingdom Animalia. Okay, so respiration is classified into two types. One is external respiration and two is internal respiration. Okay, so external respiration and internal respiration. So external respiration is what we do, organisms, but internal respiration is what our cell does. Because actually we are nothing, but we are a collection of cells. समझ रहे हो? Suppose if I ask who is Tanmay Puhan, so Tanmay Puhan is nothing but body weight into trillion cells. समझ रहे हो ना? तो he is a multicellular organism. तो ये आपको याद रखना जरूरी है that we are multicellular organism, right? And हमारे पास असंख्य सेल्स हैं. तो किसका जीना जरूरी है? सेल्स का. तो अगर सेल्स जिंदा रहेंगे तो हम भी जिंदा रहेंगे, अगर सेल्स नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे. डू वी अंडरस्टैंड? अनफॉर्चुनेटली आपका जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज व्हाट आई विल टीच यू. I will not teach you internal respiration. This will be taught to you by your botany sir. ठीक है? तो इसीलिए external respiration involves what? Breathing, which is also known as ventilation. उसके बाद gas exchange and gas transport. Okay? So what is its job? Its main job is to collect CO2 from body cells and throw it outside, and collect O2 from outside and provide it to cells of the body. Okay? Yes, sir. Did it? So this is the concept. Now, once I have given the oxygen to the cells, आप बॉटनी सर आपके क्या करेंगे? उस ऑक्सीजन को लेंगे एंड सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म कराएंगे. सो दैट इज व्हाई इंटरनल रेस्पिरेशन इज व्हाट? सेलुलर रेस्पिरेशन. हाँ, तो इंटरनल रेस्पिरेशन या सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या होगा? द सेल्स विल टेक अप द ऑक्सीजन प्रोवाइडेड एंड ऑक्सीडाइज सबस्ट्रेट्स, ऑक्सीडाइज वेरियस सबस्ट्रेट्स. Okay, oxidize various substrates like what? Like glucose, okay, comma amino acids, comma fatty acids, okay, and provide energy for metabolic activities. ठीक है? So if your cells are able to do work, you can also do work. Is there any issue? चलिए, so the second part you will read in cellular respiration. Sir will take up after some time. Now the second classification is based on your presence or absence of respiratory organ. ठीक है? तो अगर respiratory organ is there, so that is called direct respiration. And अगर not there, so that is called indirect respiration. Understood? Yes, sir. So in direct respiration, there is no respiratory system or organ. Okay? So each and every cell of the body has to respire on its own. So there is no support. Okay? यहाँ कोई भी support नहीं है. तो उसको जो भी करना है, उसको क्या करना पड़ेगा? It has to do it on its own. Understood? Yes, sir. चलिए, so this is the concept. Now, अब आ जाइए. So you can see my beautiful face. चलिए, आपको लगेगा जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या है कि नहीं? Yes, sir. चलिए, so in this case there is no system. तो इसमें क्या होगा? तो it is reported in lower organisms. तो कौन कौन से lower organisms आ जाएंगे? तो अगर ये आपका मोनेरा से स्टार्ट होगा, बट सिंस वी आर डीलिंग विद एनिमल्स, वी विल स्टार्ट विद व्हाट? प्रोटिस्टा, पोरिफेरा, निडारिया, टेनोफोरा, फ्लैटवर्म्स एंड नेमाटोडा. ठीक है?
सो ये आपके इनके पास कोई डेफिनाइट रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं नहीं है। सेकेंड इज डायरेक्ट रेस्पिरेशन so in this case what is happening so there is a devoted respiratory system okay so there is a devoted respiratory system between the needy cells and the surroundings which is responsible for bringing oxygen from the surroundings and removing CO2 क्या to the atmosphere फाइन तो इसका काम है Yes, sir. लाना ऑक्सीजन एंड टेकना CO2 so there is somebody for example when you are eating food you are not cooking food तो you are being provided food है कि नहीं तो इसलिए आपका फीडिंग is also what that is called indirect अब समझ आ गया Yes, sir. चलिए सो एनिमल ग्रुप तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा इनडायरेक्ट एनालिडा तो एनालिडा में वी हैव टू कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स एक है अर्थवर्म लीच ओके एंड उसमें क्या है मॉइस्ट स्किन तो मॉइस्ट स्किन को हम लोग क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं एंड नंबर 2 इज नेरेइस ओके तो नेरेइस क्या होगा Parapodial gills. हाँ इसको लिखेंगे पॉलीकीटा तो पॉलीकीट्स में क्या होगा पॉलीकीट्स में आपका Parapodial. पैरापोडियल गिल्स होता है तो दैट इज आल्सो कॉल्ड पैरापोडियल रेस्पिरेशन उसके बाद सेकंड कैटेगरी इज आर्थ्रोपोडा है कि नहीं तो आर्थ्रोपोडा जो है वो आपका क्या हो जाएगा द ब्लड इज कलरलेस एंड लैक्स एनी रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसीलिए जो ट्रांसपोर्ट डायरेक्ट है उसमें कोई देने वाला नहीं है जैसे हमारा हीमोग्लोबिन है तो देयर इज नो सच पिगमेंट इसलिए उसका गैस ट्रांसपोर्ट is what gas Direct. transport is direct समझ रहे हो तो Yes, इसमें एग्जांपल आ जाएगा क्रेफिश प्रॉन क्रैब किंग क्रैब उनमें Crab. बुक गिल्स तो उसको कहते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन एंड अब गैस एक्सचेंज किसके साथ होता है वाटर के साथ उसके बाद इंसेक्ट सेंटिपीड मिलिपीड्स तो उसमें क्या होगा ट्रैकी एंड ट्रैकियोल्स तो इस तरह के रेस्पिरेशन को हम लोग क्या कहते हैं ट्रैकियल रेस्पिरेशन ओके इसको आप ट्रैकियल रेस्पिरेशन कह सकते हो या ब्रोंकियल रेस्पिरेशन भी कह सकते हो तो याद रखिए यहाँ ओ है एंड यहाँ ए है तो ए मीन्स व्हाट गिल्स एंड ओ मीन्स लंग्स ओके सॉरी ये तो ट्रैकी है ना इसको नहीं कहेंगे ये ट्रैकी है ट्रैकी इधर हम लोग कहेंगे लंग्स जब आएगा तो उसको ब्रोंकियल रेस्पिरेशन कहेंगे ठीक है Yes, sir. स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर में क्या होगा बुक लंग्स तो बुक लंग्स बुक गिल्स एक जैसा दिखता है और बुक लंग्स में क्या होगा गैस एक्सचेंज अकर्स विथ एयर Yeah. ओके तो याद रखना बट बुक गिल्स में गैस एक्सचेंज अकर्स विथ वाटर ओके नाउ टिक्स एंड माइट्स ये जितने भी आपके उकुनी फुकनी होते हैं उनका क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है स्किन क्यूटेनियस मींस स्किन ओके नेक्स्ट आ जाइए मलस्का तो मलस्का में दो तरह का ऑर्गेनिज्म है एक है आपका एक्वेटिक एक है टेरेस्ट्रियल तो एक्वेटिक वालों को हम कहते हैं टेनिडियल गिल्स ओके याद है अगर मलस्का हमने पढ़ा था टेनिडियम तो Yes, sir. टेनिडियल गिल्स से वो रेस्पायर करते हैं आप देखे होंगे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा है कि नहीं Yes. सो लाइक दैट एंड जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म से उनमें लंग्स होता है इसको पल्मोनरी सैक कहते हैं बट ये ट्रू लंग्स नहीं है ये याद रखना ठीक है तापरे आसिगला एकाइनोडर्म्स तो एकाइनोडर्म्स का हर क्लास में यूनिक रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होगा डर्मल ब्रैंकिए क्लोएकल रेस्पिरेटरी ट्री ट्यूब फीड जेनाइटल बर्से एटसेट्रा इसको ढंग से पढ़ लेना बिकॉज आपका शायद दोबारा एग्जाम होने वाला है Yes, sir. चलिए उसके बाद आ जाइए फिफ्थ पॉइंट इज हेमिकॉर्डेट्स तो हेमिकॉर्डेट्स में क्या है फेरिंजियल वाल तो उनका भी कोई उतना डेफिनाइट रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर नहीं है उसके बाद सिक्स जो है
वो है कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स में भी जो प्रोटोकॉर्डेट्स हैं, यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा, उनका क्या है, उनका Pharyngeal wall. आपका फेरेंजियल वॉल है। बट जो वर्टिब्रेटा है, वर्टिब्रेटा में क्या हो रहा है, उसमें आपका क्या, जो Single lungs. हाँ, तो वर्टिब्रेटा में अलग अलग कैटेगरी आ जाएगा। तो एक्वाटिक में गिल्स, इसको ब्रैंकियल कहेंगे। एंड आपका जो एडल्ट एम्फीबियंस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, उसमें लंग्स है, इसको ट्रू लंग्स कहेंगे हम लोग, ट्रू लंग्स, जिसको पल्मोनरी या ब्रोंकियल रेस्पिरेशन बोला। Yes. चलिए, सो ये टॉपिक है, ये आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ये जेसीआरटी टॉपिक है, आपको पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। तो अलग अलग तरीके का रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होता है, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफ्लोरिन, हीमोएरिथ्रिन, हीमोसायनिन, पिनाग्लोबिन, एकाइनोक्रोम, वैनाडियम एंड मोल्फिडिन। सो यू डोंट रिक्वायर दीज थिंग्स। चलिए, अगर आप प्योर जेसीआरटी पढ़ना चाहते हो तो थोड़ा देखना पड़ता है। चलिए, अब आ जाइए एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये भी आप जनरली बॉटनी में ही पढ़ोगे, बस मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ टॉपिक। तो इन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, दिस क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड यूज ऑफ ऑक्सीजन। तो इसलिए एनारोबिक में क्या होगा, there is no use of oxygen. Okay, so respiration takes place in the absence of oxygen. Okay, so in this case क्या होगा, ग्लूकोज इज आइदर कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल, जिसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं, लैक्टिक एसिड, जिसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। बट किसी किसी में पायरुवेट भी आगे जाता नहीं है। So in this case the organism have deficiency of oxygen or lack mitochondria or are not in need of more energy for the time being. For example, आपको एनर्जी नहीं चाहिए आगे, तो क्या करेंगे, हम रोक लेंगे, आगे गाड़ी जाएगा नहीं। So this is anaerobic respiration. B है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में आप क्या देखोगे, aerobic respiration. So what is aerobic respiration? So this takes place in the presence of oxygen. Okay, Yes, sir. ये आपका एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। तो इधर हम लोग लिख लेंगे एक पॉइंट, दैट इन anaerobic respiration the output, okay, output is कितना, only 2 molecules of ATP पर ग्लूकोज। ठीक है, ये कौन सा एटीपी है, ग्लाइकोलाइटिक एटीपी। Understood? So in anaerobic respiration the output, okay, the energy output लिख देंगे हम लोग, the energy output is only 2 molecules of ATP. ठीक है, so this is the concept. तो अब anaerobic respiration का ये एक पॉइंट है। ठीक है, now aerobic respiration में क्या होता है, in this case the organism has mitochondria and also it uses oxygen, okay, oxygen during क्या, respiration। ठीक है जी, now this involves the following stages. Okay, so this involves the following stages. तो नंबर 1 क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलाइसिस। तो ये आपका पहला स्टेप है। दिस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म, okay, cytoplasm, full stop, since it does not require oxygen
this step is common in both anaerobic and aerobic respiration. ठीक है? Yes. So since it does not require oxygen, this step is common in both anaerobic and aerobic respiration. Clear? तो ये आपका important concept है. ठीक है? चलिए. Now next point we will go to क्या? Now उसके बाद आएगा पायरुविक. ओके, इसको हम लोग ये भी कर देते हैं. इसमें होता क्या है? So in this step glucose, okay, in this step one molecule of glucose, okay, one molecule of glucose is converted to क्या? Two molecules of pyruvate plus 2 ATP. Understood? तो इसलिए आप इस तरह से लिख सकते हो, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्लस 2 ATP gives ये 4 ATP. Okay, so net gain is equal to 2 ATP. फाइन, तो ये ऐसे लिख देंगे. अंडरस्टूड? तो इसलिए नेट गेन क्या है? प्लस 2 ATP होगा ना. क्या बोला? तो 1 molecule of glucose plus 2 ATP होगा. हाँ, तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी खर्चा होगा. फाइन, तो इसीलिए ये आपका पाथवे है. तो इन दिस स्टेप 1 molecule of glucose is reacting in the presence of what? Is reacting in the presence of 2 ATP and ये आपका नेट गेन. तो इसमें क्या होता है? In this case there is no need of oxygen. So the next step is pyruvic decarboxylation. So it is the connecting step between cytoplasm bracket glycolysis and mitochondria bracket में Krebs cycle. Okay, so this is the concept. So ये उसका connecting step है. Okay, so it is the connecting step between glycolysis and mitochondria. इसको हम लोग Krebs cycle बोलते हैं. ठीक है? Now it converts pyruvate bracket में 3 carbon to acetyl coenzyme A bracket में 2 carbon at the expenditure. Okay, 2 carbon, sorry. So this is 2 carbon plus इसमें क्या मिलेगा आपको? NADH plus H plus. तो इधर आपको देना पड़ेगा क्या रिएक्शन में? प्लस NAD प्लस, समझ में? तो इसलिए इट कन्वर्ट्स पायरुवेट. ओके, तो इसको ये कन्वर्ट कर देगा लाइक दिस. ठीक है जी? तो इसीलिए ये सब सर पढ़ाएंगे आपको, ये जस्ट मैं आपको एक थोड़ा ब्रीफ कर दे रहा हूँ. So it is a connecting step between cytoplasm and mitochondria. It converts pyruvate to acetyl coenzyme A. Okay? Yes, sir. Now next step हमारा क्या है? Next step is called Krebs's cycle. Krebs उनका नाम है, इसलिए Krebs's होता है उसको. Krebs's cycle.
ठीक है जी। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप है। उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एंड उसके बाद है एटीपी सिंथेसिस। क्लियर? Yes, सो sir. ये आपका अलग अलग स्टेप्स है, दैट दीज आर एंटायरली occurs in माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सारे स्टेप जो हैं ये माइटोकॉन्ड्रियल है। तो माइटोकॉन्ड्रियल क्या मैट्रिक्स, ये occurs in माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये कहाँ अकर करेगा? occurs in mitochondrial inner membrane, IMM है ना, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ओके, तो IMM समझ रहे हो? नहीं, मैं इसे लिखता हूँ, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है जी। सो दिस occurs in the inner mitochondrial membrane, and ATP सिंथेसिस भी कहाँ होता है? ये भी occurs under, ये भी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। क्लियर? तो ये मैंने आपको बेसिक दे दिया। तो अब इसका डिटेल्स आपको सर बताएंगे। तो नाउ वी विल गो टू आवर रेस्पिरेशन, सो दैट इज योर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्लियर? तो अब यही जो प्लस पॉइंट है JCRT का, यू कैन सी अ लॉट ऑफ गुड डायग्राम्स। नाउ यू डोंट वांट टू सी दैट अकॉर्डिंग टू जागृति, तो you want to see this diagram or क्या? No, sir. Okay, so this, and in NCERT they have not shown the upper respiratory tract, they have directly started from here. तो अब वो कहाँ से देखेंगे बताओ? JCRT वाला दिखा वो तो है ना, इसे तो देखा, तो मना करो ना, हमें रागी जाओ। अभी जागृति कितना गुस्सा हो गई जब मैं दिखाया, देखिए ना। चलो, तो इसलिए ये आप देख रहे हो, तो ये आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव URT, तो वी हैव टू सी व्हाट द JCRT1, भले ही जागृति इसमें पसंद ना करे। ओके, चलिए, तो ये आप देख रहे हो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो ये जो अपर पार्ट है हमारा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो दिस इज कॉल्ड द URT, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो व्हाट आर यू सीइंग हियर इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट? इसमें आप क्या देख पा रहे हैं बताइए? सो आप सबसे पहले देखो, मैं जनरल पॉइंट बता देता हूँ। तो सबसे पहले कहा गया वो, सबसे पहले तो नोज है या नॉस्ट्रिल। ओके, वो इसमें लिखा नहीं है लेवलिंग। सबसे पहले नोज या नॉस्ट्रिल होगा। उसके बाद ये आपका फेरिंग्स है। सो दिस पार्ट इज द फेरिंग्स, ये आपका नोज पार्ट है, समझ रहे हो ना? सो दिस इज द नोज पार्ट, एंड उसके बाद तो ये आपका नोज पार्ट हो गया। अब ये जो पार्ट है ये फेरिंग्स है। ओके, ये जो पार्ट, दिस इज द फेरिंग्स एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड द लैरिंग्स। ओके, फेरिंग्स, लैरिंग्स। ठीक है, तो इसलिए ये आपके अलग अलग पार्ट्स हैं। उसके बाद ये जो है, दिस इज कॉल्ड द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। फाइन, तो दिस इज कॉल्ड द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। चलिए, सो तन्मय, यू कैन गिव द माइक टू दिस गर्ल जागृति। चलिए, सो इसको पढ़िए क्या लिखा है, एंड मैं आपको समझाऊंगा। So, origin of respiratory system, endodermal. Function of respiratory system: to bring oxygen from atmosphere and provide it to each and every cell of the body, and bring carbon dioxide from every cell of the body and throw it outside via lungs with the help of circulatory system. बस ये क्या, तुमको कोई रनिंग रेस में भाग लेना है क्या? अब देख रहे हो कि जब हम पढ़ाते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, तुम पढ़ते हो तो कैसे पढ़ते हो। कहाँ जाना है तुमको? शादी वादी है तो प्यार से पढ़ो, गुस्सा क्यों? चलो तुम मैंने गुस्सा मत करो, हाँ पढ़ो। नेक्स्ट,
Respiration can hence be classified into direct respiration if there is no respiratory system between the cells and the atmosphere. Example, porifera to nematoda. Second, indirect respiration. If there is a respiratory system between the cells and the atmosphere, then it is referred to as indirect respiration. Example, annelida to chordata. फाइन। तो ये जो है, ये जो पार्ट हमारा क्या है, सो दिस इज द केस। तो अब हम लोग आगे चलेंगे। तो नाउ आवर हेडिंग इज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। तो अब हमारा फोकस कहाँ रहेगा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। नाउ इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वी आर ऑलवेज फोकसिंग इट, तो मैंने इसको हम शॉर्टकट में यूआरटी लिख रहे हैं। एंड तो ये जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इसको थोड़ा बनाया जाए। ओके, सो लेट अस मेक इट सो दैट आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हम भी बना सकते हैं। तो मैं अपना वीडियो बंद कर रहा हूं सो दैट वी कैन सेव सम स्पेस। चलिए, तो लेट अस गो फॉर ए न्यू पेज। अब सपोज ये हमारा न्यू पेज है ना, हाउ टू ड्रॉ। तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए आप लोग भी साथ साथ बना सकते हैं इफ यू वांट। तो यू सी हाउ वी मेक इट। तो ऑलवेज इन बायोलॉजी व्हाइल मेकिंग ए डायग्राम थिंक व्हाट यू आर मेकिंग, ओके, तब आपका हर डायग्राम बन जाएगा। अब जैसे फाइन, सो अब देखिए व्हाट एम आई डूइंग। दिस इज फोरहेड, nose, upper lips, lower lips, chin, neck, हो गया। एंड उसके बाद हेयर लाइन, ईयर, नेक, बन गया। Yes, sir. आ गया मजा कि नहीं? Yes, sir. चलिए, अब गाल को फाड़ के निकाल दिया जाए। वंस यू टीयर आउट द चिक्स, आपको क्या दिखेगा, यहाँ एक हड्डी दिखेगा। ओके, सो दिस बोन इज कॉल्ड एथमॉइड बोन। समझ रहे हो, इसको हम लोग एथमॉइड बोन बोलते हैं। वो क्या करता है, क्रैनियल कैविटी एंड ऑल्फैक्टरी कैविटी को सेपरेट करता है। देख लिए, पहले देख लो ये, ओके, कैसे मैं बना रहा हूँ देखो, फिर बना, बिकॉज ये तो वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा ना, आप देख के बना सकते हैं। उसके बाद ये आपका अपर जॉ है, टीथ, ये हार्ड पैलेट है, ये सॉफ्ट पैलेट है, ये उभुड़ा है। ओके, उभुड़ा जिसको कीटाणु पकड़ के खिचखिच करते हैं, याद है कि नहीं? गले में खिचखिच है, खिचखिच दूर करो, विक्स की गोली लो। तो खिचखिच इसको पकड़ के खेलता नहीं रहता है, झूलता रहता है। सो दैट इज कॉल्ड द यूव्यूला। ये आपका लोअर टीथ जो है, दिस इज द टंग, एंड ये है एपिग्लॉटिस, ठीक है। ये टंग है, ये एपिग्लॉटिस है। तो यहाँ आपका दो पाइप्स होगा, एक है ट्रैकिया, so this is food pipe, this is wind pipe। तो फूड पाइप को ओपनिंग को हम क्या बोलेंगे, गलेट। विंड पाइप के ओपनिंग को हम क्या बोलेंगे, ग्लॉटिस। सिंस ये ग्लॉटिस के ऊपर ढक्कन जैसे गिर जाता है, एपी मतलब अपॉन, ग्लॉटिस मतलब ओपनिंग, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एपीग्लॉटिस, ठीक है। ये आपका अपर हार्ड पैलेट है, ये अपर सॉफ्ट पैलेट है, दिस इज अव्यूला। तो अव्यूला क्या करता है, जिस तरह ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है, जिस तरह ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है, उसी तरह अंदर दो इंटरनल नॉस्ट्रिल्स होते हैं। तो उसको कौन बंद करता है, तो जब आप खाना स्वालो करोगे, खाना यहाँ से वहां चला जाएगा, तो ऐसा ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, अव्यूला उसको बंद कर देगा, ठीक है। एपिग्लॉटिस क्या करता है, जब हम खाना स्वालो करेंगे तो खाना कहाँ जाना चाहिए, यहाँ, बट अगर वो खाना इस तरफ आया तो क्या करेगा, एपिग्लॉटिस इसको बंद कर देगा। तो जैसे ही ग्लॉटिस बंद हो जाएगा,
तो खाना कहाँ जाएगा? Food बोलो। pipe. Food pipe. Gullet. तो इट विल गो टू द गलेट। तो इसलिए कहाँ जाना चाहिए एक्चुअली? गलेट में। तो इसीलिए एपिग्लोटिस इस चीज में मदद करता है। कोई शक? No, sir. चलिए, सो ये आपका डायग्राम हो गया। सो अब मेन चीज क्या है हमारे को देखो, अब इसका एक और डायग्राम में दिखा रहा हूं, मेरे को बताना मैं क्या बना रहा हूं। ओके, जस्ट टेल मी व्हाट आई एम मेकिंग। ये क्या है? बोलो, ग्रीन वाला में क्या बना रहा हूं? व्हाट इज द ग्रीन वन? गेस करो। इट इज द फेस ऑफ ए मंकी, हमारा एंसेस्टर। देख रहे हो कि नहीं? एंड ये रेड वाला फेस ऑफ ह्यूमन। तो व्हाट हैव वी लॉस्ट? बोलो, हम क्या खोए हैं? नाक। देख रहे हो, उसका नॉस्ट्रिल यहाँ है, हमारा नॉस्ट्रिल यहाँ है। तो हमारा कितना सारा डिक्रीज इन वॉल्यूम हुआ है, देख रहे हो? तो वॉल्यूम भी डिक्रीज हुआ है, सरफेस एरिया भी डिक्रीज हुआ है। इसीलिए काम कैसे चलेगा? इसलिए सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हमने ऑल्फैक्टरी में 3 बोन्स बनाए हैं। सुपीरियर नेजल कॉन का, मीडियल नेजल कॉन का, इंफीरियर नेजल कॉन का। कट जाएगा तो दोबारा आप लिंक ज्वाइन कर जाना। फाइन। तो सुपीरियर नेजल कॉन का, मीडियल नेजल कॉन का एंड इंफीरियर नेजल कॉन का। क्लियर? तो ये जो 3 है ये क्या करते हैं? इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ olfactory epithelium. Understood? Yes. So can you draw this diagram now? Yes, sir. चलिए, गुड। तो ये जो डायग्राम आप बनाएंगे इसको आराम से आप कॉपी में बना लेना। ओके। एंड जो भी लेवलिंग है तो आप जानते हो जेसीईआरटी का प्रॉब्लम क्या है, बहुत ज्यादा लेवलिंग होगा, तो आप लेवलिंग कर लेना और क्या। Yes, sir. ठीक है सी। सो ये डायग्राम ऑलरेडी मैं आपके लिए बना के रखा हूँ।